Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I Achal Singh welcoming you all once again to your GK class. So students, in our in our previous session, we have completed the third unit of our GK, and today we are going to start with the fourth one. Okay, so that is language, literature, legends and the myths. Okay, so this is the name of the unit, the fourth unit, that is language, literature, legends and the myth. So we are going to talk about the language, various languages, literature, साहित्य, legends जो great personalities हैं, and plus myths कुछ लोगों द्वारा अपनाए गए रीति रिवाज, traditions and कुछ कहते हैं ना like कुछ something that has been adopted by the people, okay, by themselves. So these are known as myths. Okay, so now in this topic we are going to start with the first chapter, that is world of comics, given at page number 10. Okay, so I'll just write on the topic here, that is world of comics. World of comics, given at page number, the world of comics is given at page number 10. So class, kindly open your books at page number 10, that is world of comics. Okay, comics की दुनिया. Okay, you often read lots of comics. आप कॉमिक्स पढ़ते हो, ट्रैवलिंग पे जब हम जाते थे ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम. So when we were going on the trips, so I myself, I purchased many of the comics. I purchased 2 to 3 comics when I was residing in the Punjab, and whenever we came to Varanasi. Okay, so we always buy 3 to 4 comics. Okay, so we have 4 brothers and sisters, so we buy 3 to 4 comics. Okay, and throughout the journey, starting from the Firozpur to till Varanasi, we keep on reading those comics. ओके, सो देखिए, आपने भी बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, और बहुत जो मतलब पढ़ते हैं, सम रीड ऑनलाइन ऑल्सो, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं. सो आपने कभी ये सोचा है कि दैट हाउ दीज कॉमिक्स वर केम इनटू एग्जिस्टेंस? ओके, सो ये कैसे किसने बनाया, कैसे बना, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? तो देखिए, आई जस्ट गिव अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, दैट देखिए, कॉमिक्स इज जस्ट लाइक अ बुक. ओके, जो कॉमिक्स होती हैं वो एक बुक होती है. सो दैट हाउ दिस कॉमिक्स आर मेड. ओके, सो व्हाट हैपेंस, जो कॉमिक्स जो ये होते हैं, जो कॉमिक्स बनती हैं, दीज आर द आइडियाज ऑफ द ऑथर्स एंड द राइटर्स. ओके, ये कुछ ऑथर्स होते हैं एंड सम अदर ऑथर्स एंड सम अदर राइटर्स, जो कि अपने जो आइडियाज, अपनी इमेजिनेशन. सो एज यू कैन सी, most of the characters, actually all of the characters in the comics are just fictional characters. Fictional means जो असली नहीं होते, ये एक this is just an imagination of that author or the writer of that comics. author नहीं कहेंगे, writer बोलेंगे, जिसने वो कॉमिक्स लिखी है. तो वो एक ऑथर या राइटर की कल्पना होती है, उसकी इमेजिनेशन होती है, वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स बनाते हैं. ओके, एंड उसका इमेजिनरी कैरेक्टर के इमेजिनरी फीचर्स होते हैं कि वो देखने में ऐसा है, ओके, टॉल है, बॉडी बिल्डर है, छोटा है, जैसे भी हो. ओके, सो वैसे ही देन आफ्टर दे टेल कि दैट हाउ दिस बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है, दैट इज ऑल्सो द इमेजिनेशन ऑफ द दैट कॉमिक राइटर. ओके, सो कॉमिक राइटर और द राइटर जो होते हैं उन कॉमिक्स को, जो उसकी तो ये सब जो कॉमिक्स में जितना भी कुछ होता है, ये एक पर्टिकुलर राइटर की या ऑथर की इमेजिनेशंस होती हैं. एंड जितनी ज़्यादा किसी पर्सन की या किसी ऑथर की या राइटर की इमेजिनेशन होती है, उतनी ही जो आपकी कॉमिक्स होती है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है, मज़ेदार होती है पढ़ने में. ओके, सो इन दिस, okay, so after then what it happens, then he just pen down his ideas with the जो भी उसने comics में भी है, then he give it to the publishing house, and after publishing house, they after doing the several researches and after correction, they just publish the book, okay, with the beautiful cover and all. Okay, so these are the various this is how the comics is made. Okay, so now we are going to talk about that what are the various comics. Okay, so we are going to talk about the various comics characters. So identify these comic book characters from their dialogues given below. Find their names from the help box and write them in the given space.
Okay, so in this topic, okay, so there are some comic book characters are given, okay, and their famous dialogues are also given. जैसे कि कुछ कार्टून करेक्टर्स होते हैं या कॉमिक करेक्टर्स होते हैं, कि कुछ फेमस डायलॉग्स होते हैं, तो जिसकी हेल्प से आपको पहचाना है दैट हु इज दिस कॉमिक करेक्टर, ये कॉमिक का जो करेक्टर है इसका नाम क्या है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द angrier I am, the mightier I become, and then I can smash anything into pieces. Who am I? ओके, तो वो कहता है कि मैं जब जैसे ही मुझे गुस्सा आता है, मैं मतलब जब मैं जितना मुझे गुस्सा आता है, जैसे ही मेरे को बहुत गुस्सा आता है तो मैं बहुत ही शैतान बन जाता हूँ, मैं बहुत ही हॉरिबल बन जाता हूँ, एंड नथिंग कैन स्टॉप मी आफ्टर दैट. इफ जो एंगर है, अगर गुस्सा मुझे आ जाए तो मैं कोई भी एक शैतान बन जाता हूँ. शैतान मीन्स कि मतलब आई कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग. ओके, एंड आई कैन स्मैश एवरीथिंग इनटू पीसेस. मैं हर चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ चुका, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. ओके, सो हु एम आई और हु आई एम, दैट इज हल्क. हल्क आपने देखा होगा, द ग्रीन कैरेक्टर होता है, स्पेशली एवेंजर मूवी में देखा है. एंड द हल्क इज मूवीज ऑल्सो इज देयर, हॉलीवुड मूवीज देयर. Okay, so the Hulk, he is a green man, okay, and he wears a short 3/4 pant, okay, and he became the Hulk. A person became a Hulk. एक जो कैरेक्टर है वो हल्क का बनता है when जब उसको गुस्सा आता है, तो he suddenly became Hulk. Okay, that a huge giant figure person with a great green body, and when he came, जब उसको गुस्सा आता है तो क्या होता है, then he can even smash everything, okay, that ever come around his way. Okay, so he is the Hulk. That is the answer of the first one, that is Hulk. Hulk, that is Hulk. Okay, second one, before joining hands with SHIELD, I was a Soviet agent. Who am I? जो शील्ड है, SHIELD, ओके, वो कह रहा है कि बिफोर ज्वाइनिंग द हैंड्स विद शील्ड से हाथ मिलाने से पहले मैं एक एजेंट था. आई वॉज अ सोवियत एजेंट, मैं आर्मी में एक एजेंट था. ओके, सो हु एम आई, मैं कौन हूँ. ओके, सो दैट वॉज वॉल्वरिन. ओके, वॉल्वरिन वॉज ऑल्सो इज अ कैरेक्टर. Okay, so first of all he was a Soviet agent and later on he has joined with the SHIELD. Okay, वो किसी एक आर्मी में या एक तरीके उनकी सेना में शामिल हो गया शील्ड की. Okay, that is also a comic character. Okay, and after that he joined that SHIELD army or that SHIELD character. Okay, and who is he? He is he is not Wolverine. He is Black Widow. Sorry, and it's not Wolverine. I just okay, so this is just Black Widow. Okay, so before joining hands with SHIELD, I was a Soviet agent. तो SHIELD से हाथ मिलाने से पहले, मतलब joining hand with means मतलब उसके साथ दोस्ती करने से पहले या उसके साथ काम करने से पहले, I was a Soviet agent and later on. Okay, so now who is he or who is it? It is a Black Widow. So the name of this comic character or the cartoon character is Black Widow. Okay, BLACK, Black Widow, WIDOW. That is Black Widow. Third one, I have metal in my claws and I can heal myself quickly. Who am I? Okay, this is Wolverine. ये है Wolverine क्या है, आपको याद होगा, एक करेक्टर है जो कि इसके जो हैंड्स हैं, ही इज हैविंग मेटल. उसका जो हैंड है वो मेटल का बना हुआ है. एंड जब भी उसकी बॉडी में कोई भी चीज़ खराब होती है तो वो अपने आप को बहुत ही जल्दी हील कर लेता है, ठीक कर देता है. सो दैट इज वॉल्वरिन. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट आई हैव मेटल इन माई हैंड्स. मेरे हाथ में मेटल है. एंड आई कैन हील माई सेल्फ वेरी क्विकली.
और मैं अपने आप को कहीं भी चोट हो या कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आई कैन हील माई सेल्फ वेरी क्विकली, मैं अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर सकता हूँ। सो हु इज इट? इट इज अ वॉल्वरिन। ओके, सो इट इज अ वॉल्वरिन। WOLVERINE, that is Wolverine. Okay, moving next to the fourth one. I am a warrior princess and I possesses bracelet that give me superhuman strength. Who am I? So the next superwoman, sorry, this the next जैसे सुपर हीरो होता है तो ये सुपर हीरोइन की बात हो रही है। ओके, सो ये सुपर हीरोइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, शी इज हैविंग अ ब्रेसलेट। ओके, सो शी ऑलवेज वियर्स अ ब्रेसलेट इन हर हैंड, जो कि उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पावर देता है। ओके, सो इट गिव्स नेचुरल पावर्स टू हर। सो विद द हेल्प ऑफ दैट ब्रेसलेट दैट शी इज ऑलवेज वेयरिंग, शी गेट्स सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। ओके, तो उसके अंदर एक सुपर ह्यूमन की स्ट्रेंथ है। तो कह लीजिए सुपर जैसे हीरो होता है तो शी इज हैविंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सुपर ह्यूमन। ओके, सो हु इज शी? शी इज वंडर वुमन। शी इज वंडर वुमन। सो वंडर वुमन, ओके, शी इज अ गर्ल। ओके, एंड शी ऑलवेज वियर अ ब्रेसलेट। वो अपने हाथ में हमेशा एक ब्रेसलेट पहन के रखती है, और जिस ब्रेसलेट से जो भी उस ब्रेसलेट को पहनता है तो उससे क्या होता है, उसको उसके पास एक मल्टीपल पावर्स आ जाती हैं। तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ओके, सो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। सो आई एम अ वेरियर प्रिंसेस, मैं एक प्रिंसेस हूँ। ओके, एक लड़ाई, वेरियर मीन्स जो कहते हैं ना, वॉरियर इज नॉट वेरियर, इज वॉरियर। वॉरियर मीन्स जो लड़ाई करते हैं जंग के मैदान में, सो दे आर नोन एज द वॉरियर प्रिंसेस। सो शी इज़ अ वॉरियर प्रिंसेस। प्रिंस लड़ाई करता है जंग के मैदान में, तो वैसे शी इज़ अ प्रिंसेस। ओके, एंड आई प्रोजेस ब्रेसलेट। प्रोजेस मीन्स मतलब मेरे पास एक ब्रेसलेट है, दैट गिव मी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि मुझे एक सुपर ह्यूमन की स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर? तो शी इज वंडर वुमन। सो शी इज नन अदर दैन वंडर वुमन। दैट इज द फोर्थ वन, WONDER, वंडर वुमन, WOMEN, that is Wonder Woman. Okay, moving to the fifth one. I am from the planet Krypton. Who am I? So the next character, the comic character, he is saying about something about himself, that he is from planet Krypton. तो जिस प्लैनेट से वो आया है उस प्लैनेट का नाम क्या है? क्रिप्टन। एंड व्हाट इज द नेम एंड हु इज ही? ही इज अ सुपरमैन। ओके, सो ही इज अ सुपरमैन। तो सुपरमैन है वो क्या है? ही इज फ्रॉम द प्लैनेट क्रिप्टन। वो उसकी सबसे कह लीजिए स्पेशल। ओके, सी ही डजंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, दिस प्लैनेट। ही इज फ्रॉम द अनदर प्लैनेट एंड द नेम ऑफ दैट प्लैनेट इज क्रिप्टन। ओके, वन थिंग, ये जरूरी नहीं है, ये नहीं है बेटा कि दिस इज एक्चुअल स्टोरी, दिस इज जस्ट कैरेक्टर्स। सो दीज ऑल आर द इमेजिनरी थिंग्स। ये इमेजिनरी थिंग्स है, ये सोच है। एक्चुअल में कोई क्रिप्टॉन नाम का प्लैनेट नहीं है, ना ही कोई सुपरमैन है। ओके, तो ये बस एक स्टोरी सुनाने के लिए आपको कि ये क्रिप्टॉन एक प्लैनेट, एक नाम का एक प्लैनेट है, वहाँ से एक इंसानों जैसा दिखने वाला एक ह्यूमन आया है, मतलब एक पर्सन आया है, दैट इज एंड ही इज नोन एज द Superman. But actually there is no such planet like Krypton. Okay, so these all are the imaginary things, imaginary thoughts of the writers or the author of that comic book. Okay, so I am from the planet Krypton. Who am I? I am a Superman. I am a Superman. SUPERMAN. That is Superman. So that is the answer of the fifth one. So these are the answers from 1 to 5. The first one is the Hulk, second is Black Widow, third is Wolverine, fourth is Wonder Woman, and the fifth one is Superman. Okay? Now let's move to the sixth one. I am a patriotic soldier with stars and stripes shield. Who am I? ओके, सो नेक्स्ट जिसकी हम बात करें वो एक पेट्रियाटिक सोल्जर है। पेट्रियाटिक मीन्स दैट द पर्सन हु लव्स हिज कंट्री।
who can die for his country, who can do anything to save his country. So next जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक पेट्रियाटिक सोल्जर है. कि सोल्जर्स मीन सैनिक है, वो अपने देश से प्यार करने वाला एक सैनिक है. ओके और ये जो अपनी कंट्री को कैसे बचाता है, विद स्टार्स and stripe shield. So he is having a shield that is having various stripes, अलग अलग stripes है, मतलब just like lines है, छोटी छोटी जो lines होती है उसको stripes बोला जाता है. Okay, and he is having stars on it. So what is the name of that character? So that is Captain America. Okay, so there are various movies of individual movies of the Captain America, as well as you can see all the superheroes in the Avenger movie. Avenger है ना, हाँ Avengers में, जिसमें कि हमारे सारे जितने भी सुपरमैन सुपर हीरोज हैं वो मोस्टली उस मूवी में हैं. ओके, सो आई एम अ पैट्रियोटिक सोल्जर. मैं एक देशभक्त सैनिक हूँ और मैं अपने देश को प्रोटेक्ट करता हूँ विद अ शील्ड, दैट ही इज हैविंग अ शील्ड एंड दैट शील्ड कंटेन्स स्टार्स एंड स्ट्राइप्स ऑन इट. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर? सो दैट इज कैप्टन अमेरिका. सो दैट इज Captain America. So I'll erase this one. Now let's move to the sixth one. The sixth one is Captain. The sixth one is Captain America. Okay. चलिए, now moving to the seventh one. I am the owner of Stark Industries. So next comic character या कार्टून कैरेक्टर और या जो कैरेक्टर है सुपर हीरो कैरेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऑनर है एक स्टार्क इंडस्ट्रीज. सो इज अ वेरी रिच बिजनेसमैन. ओके, सो ही इज हैविंग टू फेसेस, वन एज द आयरन मैन एंड अनदर एज अ बिजनेसमैन. वो उसके दो फेसेस हैं, एक तरह से वो बिजनेसमैन भी है एंड ही इज द ऑनर ऑफ अ वेरी बिग इंडस्ट्री कंपनी दैट इज स्टार्क इंडस्ट्रीज. Okay, he is very rich, and other than that he is also a he is also a superhero who save his country from the various attackers and various bad people or the villains. Okay, so what is the name of this character? So he is Iron Man. So Iron Man is the owner of Stark Industries and he is a very rich man. So the answer of the seventh one is Iron Man. That is Iron Man. I-R-O-N. Iron Man. Okay, आपने जैसे सुना बैटमैन भी होगा. So Batman is also very popular and the richest comic character. He is also very rich. He has two faces in that movie. Okay, so one he is एक में वो एक बिजनेसमैन दिखाया गया है. Okay, and on the another face he is also saved the world from the bad people and the villains. Okay, next is the eighth one, that is the last one of this topic. I am the king of seven seas. Who am I? मैं 7 समुद्रों का king हूँ. So he is the king of 7 seas. So who is it? It is Aquaman. So Aquaman is the king of 7 seas. Aquaman is the king of 7 seas and as well as what is his name? Aqua का मतलब क्या होता है? पानी. एक्वा गार्ड आपके घर में है, एक्वेरियम है. देखिए एक्वा एक्वेरियम, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वा मीन्स दैट समथिंग रिलेटेड टू द वाटर. सो ही इज द ऑनर ऑफ 7 seas. So what is the name of this character? So he is none other than Aquaman. He is none other than Aquaman. So that is the answer of the 8th one. That is Aquaman. A-Q-U-A-M-A and that is Aquaman. Okay, so these are the answers from 6 to 8. 6th one is the Captain America. 7th is the Iron Man. 8th is the Aquaman. Okay. So with this we have completed this topic. Now let's move to the next topic that is given at page number 22. That is wise expressions. Okay, and that is the second topic of a 4th unit. ये हमारे 4th unit का second topic है and the name of the topic is wise expressions. So I'll just change the topic here.
the vice expressions given at page number 22. So all of you class, kindly open your books at page number 22, that is vice expressions. Vice expressions given at page number 22. Okay, so what is the meaning of vice expression? देखिए पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, then you will came to know about. Noah's friends are in trouble. He wants to help them by saying the correct proverb. Match the proverb spoken by the Noah with the situations given here. Okay, जो नोई के दोस्त हैं वो बहुत ही मुश्किल में हैं और वो अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहता है ताकि वो डरे नहीं, घबराए नहीं मुसीबतों से. तो वो उनको एक कहते हैं ना, एक अलग अलग मुहावरे बोल के, कि ये मुहावरा है कि उनको बोल के उनको एक तरह से हिम्मत देना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू मोटिवेट he wants to motivate them. So he wants to select a proper proverb so that he can speak before his friends, and so that his friends they became जो कि थोड़े nervous है, so they just became normal. Okay, so starting with the first one. Okay, so इसमें देखिए बेटा, starting with the first one, यहाँ पे देखिए ये these are the proverbs given in the this rectangular, and these are the various situations in which you have to use these proverbs. Okay, starting with the first one. Tara lost her ball in the park today and she is very sad. Okay, तारा ने अपनी जो बॉल है वो आज when she was playing in the playground, she lost her ball in the playground. Okay, so Tara has lost her ball in the playground and she is very sad कि उसकी जो बॉल है वो गुम गई. So what proverb fits here? That is, don't cry over spilt milk. Okay, अब जो होना तो हो गया, उससे क्या फायदा. मतलब डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब कि जो दूध ऑलरेडी गिर चुका है उसके ऊपर रोने से क्या फायदा. क्या आप उसको इकट्ठा करके वापस उस बर्तन में डालोगे? नो, जो हो गया सो हो गया. सो लेट्स मूव ऑन. ओके, एंड जस्ट कीप इन माइंड दैट दिस शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन. Okay, so this is the proverb that he will use before her friend Tara, who has lost her ball, okay, when she was playing in the garden today. So for this the proverb suits that don't cry over spilled milk. जो चीज़ ऑलरेडी खो चुकी है, गायब हो चुकी है, उसके ऊपर रोने से क्या फ़ायदा. ओके, सो डोंट जस्ट अपने आप को उदास मत करो, जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट मूव ऑन एंड ट्राई टू कि नेक्स्ट टाइम दिस शुड नॉट बी रिपीटेड. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज ई. फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ई, दैट डोंट क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क. स्टार्टिंग विद द सेकेंड वन. Second is Jyoti and Tasha just don't want to do assignment together. जो ज्योति और ताशा हैं, they always keep on fighting and they don't want कि वो दोनों इकट्ठे बैठ के कोई भी assignment complete करें. So they don't want to complete their assignments collectively, और इकट्ठे बैठ के assignment करना नहीं चाहते because they always keep on fighting. So what proverb that Noah must use so that their friend should understand? So क्या proverb use करना चाहिए ताकि जो उसके दोस्त हैं वो इस चीज़ को समझें. So he is going to use two heads are better than one. Two heads are better than one. Suppose you want कि अगर देखिए एक बंदा जैसे एक इंसान कोई एक काम कर रहा है, तो कि सपोज को कुछ ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ही क्रिएटिविटी चाहिए. ओके, एंड ही इज़ डूइंग लोनली. ओके, अकेले वो कर अलोन एंड ही इज़ डूइंग अलोन एंड अलोन वो कर रहा है. तो उसके जो जितने आइडियाज उसके दिमाग में आएंगे, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दैट पीस ऑफ पेपर और वेयर एवर इट इज रिटन. बट अगर उसका एक कोई फ्रेंड आ जाए या वो कोई फैमिली मेम्बर आ जाए, वो भी आपको 2-3 आइडियाज़ दे देंगे, तो हो सकता है जो आपने चीज़ रखी है और लिखी है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कि अगर आप अकेले काम करोगे उससे ज़्यादा बेटर है कि आप 2 लोग इकट्ठे मिलकर काम करिए, तो 2 लोगों के आइडियाज एक चीज़ में आएंगे, सो दैट विल बी डेफिनेटली द बेटर वन. सो दैट मीन्स द आंसर ऑफ द सेकेंड वन विल बी टू हेड्स आर बेटर देन वन. एक से 2 भले, कहते हैं ना, एक से भले 2. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. ओके, सो 2 हेड्स आर बेटर देन 1. दैट इज द बी वन. 2 heads are better than 1. That is the B one. Third one. Okay, Ria has a test tomorrow and she is not prepared for the test. She is praying to God for good marks. Okay, जो रिया है उसका कल टेस्ट है
एंड उसने कोई पढ़ाई नहीं की है, बट वो सुबह से भगवान की पूजा पाठ कर रही है, मंदिर में घंटियां बजा रही है, शी इज प्रेइंग, अगरबत्तियां जला रही है, दिए जला रही है कि प्लीज भगवान मेरे अच्छे मार्क्स आए. इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग शी इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, शी इज प्रेइंग टू गॉड कंटिन्यूसली फ्रॉम द मॉर्निंग. सो व्हाट इज द प्रोवर्ब that applies here? That is, God help those who will help themselves. भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी खुद मदद खुद करते हैं. अगर आप अपनी सपोज आप कहीं गिर गए, आप चाहते हो कि आप उठ जाओ, तो आप कहो क्या क्या हो भगवान आके मुझे उठा दो, नो, वो परमानेंट मतलब नहीं उठाएंगे. जेन्युइन बात है. ओके, सो यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. अब अपने आप को खड़ा कोशिश करेंगे तो हो सकता है कोई देखेगा कि हाँ शी इज ट्राइंग टू गेट अप बट शी इज नॉट एबल, तो समवन विल कम एंड जस्ट हेल्प यू टू स्टैंड अप. सो ऐसे ही अगर उसको पढ़ाई करनी है तो इफ शी वांट्स टू गेट गुड मार्क्स तो शी मस्ट स्टडी. ओके, तो भगवान उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं. सो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प themselves. This is the answer for the A1. Okay, God help those who help themselves. Fourth one, that is the A. Fourth, Mary bought a lottery ticket. She had already made plans for what to buy with the prize money even before she won. तो मैरी ने आज एक टिकट खरीदा है लॉटरी का, एंड शी इज़ प्लानिंग दैट जब उसकी लॉटरी लगेगी तो वो ये खरीदेगी, यहाँ जाएगी घूमने, ये खरीदेगी, ये खाएगी. ओके, शी इज़ मेकिंग प्लान्स, बट अभी तक उसकी लॉटरी लगी नहीं है. सो दैट मीन्स लॉटरी लगने से ही पहले वो अपनी सारी जो ख्वाब हैं, जो उसने सारी इमेजिनेशंस है, जो उसके सारे ड्रीम्स है, वो शी इज जस्ट मतलब वो सोचे, मतलब वो इतनी खुश होगी कि हाँ मेरी लॉटरी तो लगी जाएगी, एंड आई विल बाइट ऑल दीज थिंग्स, आई विल गो देयर, आई विल प्लान अ ट्रिप टू हियर एंड ऑल दीज थिंग्स. सो व्हाट इज द प्रोवर्ब? हो सकता है कि ना लगे तो उस टाइम उसको बहुत बुरा लगेगा. ओके, सो व्हाट इज द प्रोवर्ब दैट सूट्स हियर? दैट डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. ओके, सो अंडों के फूटने से पहले यह मत सोचो कि उसमें से कितने जो चूचे जिसको होते चिकन्स होते हैं वो बाहर आएंगे, चिक्स बाहर आएंगे. ओके, सो अंडों के फूटने से पहले आप नहीं बता सकते कि उसमें से कितने चिक्स बाहर आएंगे. जैसे कि हो सकता है कि वहाँ पे 6 एग्स थे, उसमें से 2 हों या 3 हों, हो सकता है 6 के 6 भी हो, या हो सकता है 1 हो. ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक में से एक चिक निकले, और हो भी सकता है कि नहीं. सो जिससे पहले कि मतलब सो हियर द सिचुएशन अप्लाइज दैट डोंट काउंट एग्स बिफोर द, सो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. अंडों के फूटने से पहले उनके उसमें से निकलने वाले चिकन्स के बारे में मत सोचो. वैसे ही लॉटरी लगने से पहले अपने प्लान्स मत बनाओ, अदरवाइज यू विल फील वेरी बैड एट लास्ट. दैट इज द F1. That is the F. Now fifth one, Aman has not done his project and wants to finish it quickly. अमन ने अपना काम अभी स्कूल का करना शुरू भी नहीं किया है, एंड वो चाहता है कि उसका काम जल्दी से ख़त्म हो जाए. तो जल्दी से ख़त्म करने के लिए ही मस्ट हैव टू ट्राई इट, सो ही मस्ट ट्राई इट टू कंप्लीट इट. ओके, तो कोई भी काम जब तक शुरू नहीं करोगे तो वो कंप्लीट कैसे होगा. ओके, सो फॉर कंप्लीटिंग अ वर्क सो एटलीस्ट यू मस्ट स्टार्ट. खत्म करने से पहले इसको शुरू करोगे तभी तो वो खत्म होगा. सो दैट मीन्स व्हाट इज द प्रोवर्ब दैट अप्लाइज हियर? दैट इज हेस्ट मेक्स वेस्ट. ओके, मतलब अभी वो अपना काम शुरू कर रहा है कि मतलब चलो फटाफट खत्म होगा तो चलो ये मैं और ज़्यादा कि मतलब शुरू भी नहीं किया अभी उसने, वो खत्म करने की जल्दी में. तो दैट मीन्स अगर वो कोई भी काम जल्दबाजी में करेगा तो आपको पता है जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा गड़बड़ ही होता है. सो हेस्ट मेक्स वेस्ट. जल्दबाजी में किया हुआ काम दैट विल मे बी पॉसिबल दैट जो उसने वो भी जितनी मेहनत की है दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि वो जल्दी करने की कोशिश में सब गलत लिखता हुआ जा रहा था. ओके, सो दैट इज हेस्ट मेक्स वेस्ट. दैट इज द D1. D फॉर डॉग. Moving to the sixth one, that is the last here. Instead of doing his homework, Pranav is playing games on his computer. तो प्रणव अपना काम करने की बजाय वो बैठ के अपने कंप्यूटर के ऊपर गेम खेल रहा है. तो उसको समझाने के लिए व्हाट इज द अ लिटिल टू लेट इज मच टू लेट. जितना लेट करोगे उतना और ज़्यादा लेट होता जाएगा. जैसे कि बच्चों को बोला जाता है डू योर वर्क डेली, बट सब बच्चे कहते हैं कि मैं आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे. तो अब जो कल का होमवर्क होगा फिर वो कब करोगे जो कल दिया जाएगा. सो दैट मीन्स यू हैव टू अपडेट योर वर्क ऑन रेगुलर बेसिस. ओनली देन यू विल बी एबल टू मूव अलॉन्ग विद द टॉपिक
ओके आज का काम कल पे छोड़ा, फिर कल आज वाला काम करोगे तो कल वाला काम उससे अगले दिन करोगे, तो ऐसे क्या होगा, धीरे 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 आपका जो काम है, बर्डन है, वो बढ़ता हुआ जाएगा. सो दैट मीन्स the proverb that applies here is a little too late is much too late. थोड़ा सा लेट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लेट होता जाएगा. आपने देखा होगा कोई पेंडिंग काम छोड़ दो कि चलो इसको कल करेंगे, फिर वो कल कभी आता ही नहीं है. ओके एंड एट लास्ट यू विल फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम दैट ओनली. ओके सो a little too late is much too late. That is the C1. Okay. Okay. So with this we have completed this chapter as well. So this was our second chapter of this fourth unit. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class. Okay, so I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.